this is a linear data structure, just like arrays. So that means the elements are organized in a linear fashion. Now, how it is different from array and why we are using linked list? If you carefully scan the concept of arrays, here the benefit of array was you can be able to assess any of the element, like any of the indexed element, in order of one time. That means what operating system does, it takes into account the base address of the array and apply the formulation, whether you are using the column measure or row measure, depending on the language which is of use. It directly assess that element address and fetch the information, or input the information, or update the information in a order of constant amount of time. So all these operations of retrieval of the value, or input of the value, or updation of value, they can be done in a constant amount of time. That is order of one time. That is the beauty of usage of arrays. The limitation of the arrays, they are of fixed size. Either we are taking the help of simple like static arrays like this, or is some languages do now have started providing this functionality, integer n, then we are taking integer p times of n, scanning this n from the keyboard. This facility is also being provided. Or if we are taking the concept of dynamic array, like with the help of pointers, so in that case also we can have to give the size of the array in that case. So that n can be taken no doubt from the keyboard, but we have to give some size to the array for that beforehand, before using that the concept of the array for further process. So, but the main drawback of using the array is it needs contiguous memory location. Like if I'm a millionaire, I purchase some property somewhere to build my house, तो मैंने वो घर बना लिया, लेकिन गैरेज के लिए जगह नहीं बची. तो जनरली what I will doing, I will try to use such area which will have contiguous. Generally garages should be along with my house premises जो भी हैं. तो आई विल हैव टू टेक कॉन्टिग्यूस. ऐसा तो है नहीं मैंने यहाँ पर बेडरूम यहाँ बना दिया और ड्राइंग रूम मैंने किसी और लोकेशन पे जाके बना दिया. If I'm talking about huge chunk, so it has to be a contiguous memory location. The problem lies if I want to take an array of say 1000 elements, 1000. If I'm taking integer take 4 byte, I need contiguous 4000 bytes for my purpose for storing the using the concept of array. If that contiguous space is not available in the RAM, my operations, I will not be able to attempt the concept of arrays. Last thing which is important is, even if I have got sufficient space to store the data in a contiguous manner, the insertion and deletion can be quite expensive in that case. If I have got say 1000 elements in the array and I want to perform deletion of the element from the beginning, say 1000, say 10,000 elements are there in the array. If I want to perform deletion of the first element of the array, I will have to do the shifting. Second वाला element इस तरफ जाएगा, फिर ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, and so on. If there are 10,000 elements, so I will have to go for say 1000 element. I will have to go for 999 shifts. तो ये आपका shifting ले जाएगा उतना. It will add to order of n complexity in that case. Shifting of the element. Or if I want to insert a new element at the beginning of the array, say 10,000 elements are, say 1000 elements are already there, तो लास्ट एलिमेंट को आप राइट में शिफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ शिफ्ट करेंगे, एंड सो ऑन. Shifting the element to the right word will be there to give a space to the new element which has to be stored there. It will again go for right side shift, that will go for 999. If there are 1000 elements, so 1000 shifts to the right side starting from the last element onward. तो इसमें फिर ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग जाता है. ऐसी एप्लीकेशंस जहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ, जहां पर आपको एलिमेंट ज्यादा हैं, तो वहां पर अगर कॉन्टिग्यूस स्पेस मिल नहीं रही, वी विल हैव टू स्टॉप यूजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ array. सेकंड थिंग इज ऐसी एप्लीकेशन नो डाउट मेमोरी कॉन्टिग्यूस मिल गई है, उसमें फ्रीक्वेंट इंसर्शन डिलीशंस हो रहे हैं. नेवर ट्राई टू प्रेफर द यूसेज ऑफ array देयर. कभी भी array को कभी यूज मत किया करो. हाँ, अगर आपकी एप्लीकेशन में मैक्सिमम सर्चिंग हो रही है और असेस टाइम आपको मैटर करता है, यू वांट टू रिट्रीव द डाटा और यू वांट टू फीड इन द डाटा, देन array कैन बी अ गुड चॉइस फॉर यू. फॉर सर्चिंग पर्पस गो फॉर arrays इफ यू हैव गॉट एम्पल अमाउंट ऑफ कॉन्टिग्यूस स्पेस. तो मेन जिसमें दिक्कत क्या आती है, यू हैव टू प्री डिफाइन द साइज ऑफ द array फर्स्ट ऑफ ऑल.
आपको बताना पड़ेगा कितना साइज ऑफ द एरे। नो डाउट इन डायनेमिक एरे कंसेप्ट यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द एरे डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस यूजिंग realloc function or malloc function in calloc function in C, and also using new function you can create a new array and copy all those values to that array. अगर आपने array का size change भी कर दिया है, suppose कर लो I created one array using say new, I'm just talking about the C++ flavor, I created an array using new. Let us suppose आज क्लास की स्ट्रेंथ है, suppose कर लो टोटल क्लास में 100 बच्चे थे, लेकिन say I'm teaching first year students, तो I feed in the information, I use the concept of array for my purpose, और मैं C in simple array की तरह इसको यूज कर सकती हूँ, C in AI. Later C आपके स्टेज में after 4 or 5 days I got to know that 5 more students have been added. So I need now array of 105 size. In C++ there is no facility to extend the size of the array. For that I will have to take another array, इसमें डाटा मैं डाल चुकी हूँ, I will have to take another array of pointer variable of now size new int 105. So there I will have to copy all the elements, the original elements which I already assigned to the new array bi. This is how I will have to copy it. First of all, to store the initial entries. So in the B array, now I will start using the B array with the extended version. I can add new 5 more entries inside this. So this copy operation will again take order of n time. So remember these things, even if I have got contiguous space, this size of the array has to be predefined. If I don't have the contiguous space, then I can't take array in either case. So in case that there is one application which is frequently increasing, seeks for increasing or decreasing the size of the array, then it is not recommended to use dynamic array in those cases also. If you're working on a fixed chunk of the array, you can go for dynamic array. If you know that the array size is not going to get altered much, in that case, you can take the help of arrays in that. Now coming back to what is the concept of linked list inside this. Linked list क्या करता है? Say I wanted to store say element 30, 90, 70, 50. These are some set of elements I wanted to store. ये elements को store करता है. पहली बात तो simple array जब आप बनाते हो तो वो array लेता है, memory लेता है RAM के अंदर. There are two chunks I've already told. One is called stack and other is called heap area. दो area होते हैं, stack और heap. अगर आप simple array इस format में बनाते हो, then that chunk of the memory, whatsoever the data size of data type is there, that is being taken from the stack. But when you are creating dynamic arrays with the help of new or malloc, depending on the language which is of use, that chunk of memory is taken from the area of memory that is called heap. इसको बोलते हैं रन टाइम मेमोरी, जिसको आप बोलते हो. तो हीप की स्पेशल एरिया ऑफ द मेमोरी होती है, वहां से वो डाटा आपकी मेमोरी एलोकेट करता है. अब ये assume करो these are some set of quarters place areas which are some general areas. These are, let us suppose, CUDA approved colonies. These are special areas from where you are getting that allocation of the memory. तो लिंक लिस्ट भी रैम के हीप के एरिया से मेमोरी एलोकेट करती है, बिकॉज वी विल बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ न्यू और पॉइंटर्स कंसेप्ट टू प्ले विद लिंक लिस्ट. तो लिंक लिस्ट में क्या फर्क है? एरे के केस में अगर कॉन्टिग्यूअस स्पेस मिलती है तो यू विल स्टोरिंग द एलिमेंट ऑफ द एरे 30, 90, 70, 50. If you're taking help of simple array, so you will be taking this memory from the stack. If you're taking dynamic array, the same memory will be allocated in the heap. This is what we are trying to do. लेकिन लिंक लिस्ट के केस में क्या है? अगर आपके पास कॉन्टिग्यूअस स्पेस नहीं है तो व्हाट लिंक लिस्ट डज, तो उसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंग इट टेल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू गिव द एनी फ्री स्पेस अवेलेबल इनसाइड द हीप ऑफ द रैम. तो करती क्या है वो, उसमें वो चंक के अंदर एटलीस्ट यू अज्यूम दिस इज अ हाउस जो फ्री मेमोरी है, उसके अंदर 2 पोर्शंस हैं, एटलीस्ट 2 पोर्शन शुड बी देयर विद इन दैट लिंक लिस्ट, जहां पर 30 एलिमेंट रिजाइड करेगा. से फर्स्ट एलिमेंट 30 हम वहां स्टोर कर देंगे. Then my program will again request the operating system to give a new memory. कैसे वो बताएंगे कौन सा function call होती है. Say I want to store next element 90. Say my operating system gave me this location, so I stored 90 here in this house. I'm there. There are 2 components of the house. What are those? We will discuss that. पहला एलिमेंट 30 था. हर लोकेशन का रैम के अंदर एड्रेस होता है. से इसका एड्रेस 3000, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दैट हाउस. अगर मैं बोलूं इस पर्टिकुलर घर से हाउस नंबर है से 94 है,
इस घर के किचन की तरफ जाना है तो किचन, इस घर का बेडरूम देखना है तो हाउ यू यूज टू रिप्रेजेंट हाउस नंबर 94 डॉट एरो किचन, हाउस नंबर 94 एरो बेडरूम, हाउस नंबर 94 एरो ड्राइंग रूम, हाउस नंबर 94 एरो बालकनी। तो इसमें जो जो भी हाउस का स्टार्टिंग एड्रेस होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस घर में दो चीजें रहती हैं, एक तो डाटा पोर्शन जो हमने डाला है, एक पॉइंटर टू द नेक्स्ट हाउस। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं इस पॉइंटर को, लेट अस सपोज पॉइंटर का नाम है मैंने नेक्स्ट रख दिया, इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल। इसमें क्या है, इसमें नेक्स्ट घर का स्टार्टिंग एड्रेस है। अब नेक्स्ट घर का स्टोर कहाँ हुआ, सपोज करो ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है नेक्स्ट घर का स्टार्टिंग एड्रेस 5100 है मेरे पास फ्री, यू ऑक्यूपाई दिस, तो यहाँ पर स्टार्ट नेक्स्ट घर का एड्रेस 5100 स्टोर होगा, एक चेन सी बन जाएगी एक तरह की। गॉट इट? तो इफ आई से आई वांट टू प्रिंट द pointer value of this house, so I will say 3000 arrow next, this will give me the address of the next immediate next element, starting address of the next house। अब नेक्स्ट मैंने स्टोर किया 70, तो 70 सपोज कर लो रैम के अंदर उसने ये पोजीशन दी है ऑपरेटिंग सिस्टम, रैंडमली एनी मेमोरी कैन बी एलोकेटेड, लेट अस सपोज इसका स्टार्टिंग एड्रेस 1001 है, तो 70 will be stored in this house having at least two component 70 and it will store the pointer to the next। 90 के बाद 70 आया तो 90 के घर में 90 के सेकंड पोर्शन में ये एड्रेस कॉपी हो जाएगा, इट इज अ चेन ऑफ फ्रेंड्स हाउस। 70 के बाद 50 आया, 50 को सपोज कर लो इसने मेमोरी ये दे दी, लेट दिस मेमोरी एड्रेस इज 4012 से एनी, तो यहाँ पर आ जाएगा 4012 घर का एड्रेस, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा 50। 50 के बाद कोई फ्रेंड नहीं है तो 50 कहता है मेरे घर के बाद कोई घर नहीं है, ओके नल खत्म, यहाँ से चेन आपकी खत्म हो गई। एटलीस्ट विद इन द लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट इज नथिंग जिसमें एक एलिमेंट्री पोर्शन होता है सबसे छोटा पोर्शन, दैट इज कॉल्ड नोड। एक घर को बोलते हैं एक नोड, नोड के अंदर कम से कम डाटा वैल्यू होगी जो जिसको वैल्यू को आपने स्टोर करना है उस घर के अंदर, एक होगी नेक्स्ट घर का एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस, इट विल हैव टू कंपोनेंट डाटा, और मैंने एड्रेस का नाम रख दिया नेक्स्ट, नाम ही नेक्स्ट रख दिया, पॉइंटर वेरिएबल, इट विल ओनली हैव द एड्रेसेस, दिस विल हैव इंटीजर वैल्यू। तो इसका फायदा क्या है, अगर आपके पास कॉन्टिग्यूअस स्पेस नहीं भी है तो वो चेन बन जाएगी, जहां जहां उसको स्पेस मिल रही है वहां वो वैल्यू डालता जाएगा, इट विल बी चेन ऑफ एड्रेस, चेन ऑफ हाउसेस वेयर इन एवरी हाउस address of the next house will be stored, in every house address of the next house will be stored, last का एड्रेस नहीं होगा। अब इस चेन को असेस करने का तरीका क्या है, I will take one more additional memory that is again that can be a part of stack or heap, वो भी stack का part होगी, we'll discuss why it is a part of stack, we'll discuss that also। तो उसमें क्या होगा, वो मेमोरी क्या होगी, you assume that memory is nothing but some person, उसके दिमाग के अंदर वो चिप है एक तरह की जिसके अंदर उस चेन के स्टार्टिंग घर का एड्रेस होगा, दैट इज 3000 से, उसको मैंने बंदे का नाम दे दिया स्टार्ट। तो स्टार्ट इज अ स्पेशल पॉइंटर वेरिएबल बिकॉज इट इज अ सच मेमोरी व्हिच कैन ओनली स्टोर द एड्रेसेस, तो इट इज ऐसा स्पेशल पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें लिंक लिस्ट का के घर स्टार्टिंग घर का एड्रेस हो। अगर मुझे 50 को असेस करना है, 50 की मुझे वैल्यू चाहिए, तो मुझे नहीं पता 50 कहाँ रहता है, तो हाउ इफ आई वांट टू रीच एट दिस हाउस, तो मैं पहले उस पर्सन के पास जाऊंगी, उसके ब्रेन के पास, दैट मींस आई विल स्टार्ट विद दिस पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू उठाऊंगी 3000, 3000 से आई विल ट्राई टू फाइंड क्या 3000 का डाटा पोर्शन 50 है, सर्च करना 50 है कि नहीं, कहते क्या ये 50 है, कहते नहीं इट इज 30, कहते मुझे नेक्स्ट घर में जाना है, तो नेक्स्ट घर में जाने का तरीका क्या है, आई नीड द एड्रेस 5100, हाउ टू गेट 3000 से मुझे कैसे मिलेगा, 3000 कहते हैं नेक्स्ट पोर्शन दैट इज नथिंग बट 5000, तो फ्रॉम 3000 का नेक्स्ट 3000 का डाटा इज दिस वन 30, 3000 का नेक्स्ट इज 5100, आई विल गेट फ्रॉम दिस 5100 दैट इज नथिंग बट 5100, तो आई गॉट द एड्रेस ऑफ 5100, फिर मैं पूछूंगी क्या 51 का 100 का डाटा 50 के बराबर है, कहते नहीं जी इट इज 90, कहते मुझे नेक्स्ट घर का एड्रेस बताओ जी, 5100 का अब नेक्स्ट करूंगी मैं, नेक्स्ट मतलब उसके घर 5100 के नेक्स्ट पोर्शन से नेक्स्ट घर का एड्रेस मुझे मिल जाएगा, दैट इज 1001, फिर मैं 1001 के पास जाऊंगी, क्या 1000 का डाटा 1001 का डाटा क्या ये 50 है, 1001 का डाटा, वो कहते नहीं जी इट इज नॉट 50, कहते लेट मी ट्राई फॉर द नेक्स्ट चेन, कहते चेन खत्म तो नहीं हुई, कहते नहीं है मेरे पास अभी नेक्स्ट घर का एड्रेस है, ओके हाउ टू गेट द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट हाउस, 1001 का
next portion, that is nothing but 414012. तो 4012 I got the address of that. क्या 401 का डाटा 50 के बराबर है? कहते yes, I will say I searched that person with value 50. तो लिंक लिस्ट का नेगेटिव पॉइंट क्या है? ये सर्चिंग हमेशा लीनियर करता है, धीरे धीरे एक एक हर चीज को आपको ट्रांवर्स करना पड़ेगा. दैट इज द नेगेटिव पॉइंट ऑफ लिंक लिस्ट. अदरवाइज इसमें इंसर्शन डिलीशन बढ़िया होती है, लिंक लिस्ट वहां प्रेफर की जाती है. कॉन्टिग्यूअस स्पेस अगर हमारे पास नहीं है, यूज द कंसेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट फॉर योर पर्पस. जरूरी नहीं है डाटा इसमें एक ही होगा. डाटा आप जितना बड़ी पूरा आप रिकॉर्ड डाल सकते हो. नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, एज, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द स्टूडेंट, एज ऑफ जो भी आपका एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, पॉइंटर टू द नेक्स्ट हाउस, नेक्स्ट हाउस में फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट का सारा डाटा. ये डाटा टाइप, ये वाला डाटा और ये नेक्स्ट घर का डाटा, जैसे हम क्वार्टर्स होते हैं, these should be of same structure and same type value. ये नहीं कि अलग अलग टाइप के क्वार्टर्स हो सकते हैं. जैसे क्वार्टर्स होते हैं फिक्स्ड फॉर्मेट के, फिक्स साइज, फिक्स शेप के होते हैं. एवरीथिंग इज फिक्स्ड इन द सिमिलर मैनर. लिंक लिस्ट के अंदर भी हमें फिक्स रखने चाहिए. तो कम से कम एक लिंक लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कलेक्ट चेन ऑफ नोड्स where single node is nothing but data plus next portion. कम से कम उसमें दो पोर्शन तो होंगे. Data can be integer, float, double, character, string. It can be in the form of structure also. You can make the data in any of the format, whatever you want. तो लिंक लिस्ट की बेसिकली आपकी जो लिमिटेशन है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की, ये अलाउ करता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कि आपकी न्यू से मेमोरी एलोकेट होगी, ये हीप से डाटा लेगा. तो इसमें क्या है, यू डोंट हैव टू मेंशन द साइज ऑफ द एलिमेंट्स. अब जैसे पीछे में मैंने एलिमेंट्स निकाले थे, अगर मुझे नेक्स्ट एलिमेंट 100 डालना है, आई विल कीप ऑन एक्सटेंडिंग द साइज ऑफ द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आई कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग. कोई फिक्स नहीं, जितने एलिमेंट डालने उतने घर बनाते जाओ. there is, we don't need any contiguous space to create new houses in the chain of these existing houses. तो इंसर्शन डिलीशन नो डाउट इसमें बड़ी बेटर है in comparison to arrays. I will discuss through the help of programming why they are better, because array में तो शिफ्टिंग की जरूरत पड़ती है, यहाँ शिफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती. अगर चेन ऑफ फ्रेंड सर्कल है, अगर लेमैन एग्जांपल में बात करूँ, सपोज कर लो ये मेरे कोई एड्रेसेस थे, some 3 houses were there, 3 ही हाउसेज हैं. लेट एट स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दिस हाउस 4000, इसका 4000 से इसका 5000 है, तो इसमें 4000 का एड्रेस होगा, इसमें होगा 5000 का एड्रेस. मुझे ये घर डिलीट करना है ये वाला. तो व्हाट हाउ टू डिलीट इट, हाउ टू डिलीट रिमूव द सेम फ्रॉम द चेन. तरीका क्या है इसको करने का, हाउ इट इज इजी टू गेट इट डन. इसको डिलीट करने का तरीका क्या है, कहते इसके एड्रेस पोर्शन में, फर्स्ट घर के एड्रेस में अगर मैं 5000 डाल दूं, फर्स्ट घर के एड्रेस में अगर मैं 5000 कॉपी कर दूं, तो चेन ऐसे बन जाएगी, ये चेन से बाहर हो जाएगा. तो दिस इज नथिंग बट डिलीशन ऑफ अ नोड फ्रॉम द लिंक लिस्ट. इस तरीके से इट इज वेरी इजी टू परफॉर्म इंसर्शन डिलीशन इन द केस ऑफ लिंक लिस्ट. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द लिंक लिस्ट. Linked list is nothing but the collection of nodes. I will use the term for layman example. Node is nothing but a single house. एक बिल्डिंग की फॉर्म में, उसमें कम से कम 2 पोर्शन होंगे, डाटा एंड नेक्स्ट. For the sake of simplicity, I am considering only the integer data. Now, before that, you should know have the prior idea of structure. Structure में क्या होता है? It is a collection of heterogeneous data element, but they are logically related. जैसे एक स्टूडेंट का नाम और उसका रोल नंबर, they are logically related. If I say एम्प्लॉई का नाम और एम्प्लॉई का रोल नंबर, एम्प्लॉई का रोल नंबर तो होता नहीं, एम्प्लॉई का आईडी होता है. Which collection of different data types, but they are logically related. अगर मैं बोलूँ एम्प्लॉई की फीस तो होती नहीं, एम्प्लॉई की सैलरी होती है, तो दो शुड बी लॉजिकली रिलेटेड टर्म्स. माना डाटा टाइप डिफरेंट हो सकता है, तो इसमें आपने नेम रोल नंबर लिखा, तो जैसे आपने इसको स्ट्रक्चर बनाया, कोई लेट अस सपोज एज ऑफ द स्टूडेंट, इट इज सीजीपी ऑफ द स्टूडेंट. So how you are creating structure, you are creating struct, you are giving name to that structure, say character name 10, whatsoever you want to give. Then you are taking roll number, integer roll number, then you are taking say CGPA, float CGPA. So this is how you are storing different data type chunks together which are logically related with each other. You are putting semicolon here. Now there are 2 ways to use this tidbit for in the main. One is you can take a structure variable, just like आपने एक बोलते हैं ना integer a. अब int क्या है, इनबिल्ट डाटा टाइप है. ये struct student क्या है, ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है. आपको एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है to make it as integer. If I want to create a structure, तो I will say struct student a.
जस्ट लाइक दिस। फर्क कितना है, ये इनबिल्ट डाटा टाइप था, ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जो हमने ऊपर बनाया यहाँ पे। तो एक तरीका तो है आप वेरिएबल का नाम लो a, इफ आई वांट टू असेस और इनपुट एनी ऑफ द वैल्यू आई कैन से सी इन a डॉट रोल नंबर, सी इन a डॉट cgpa एंड सो ऑन लाइक दिस, सी इन a डॉट नेम। तो हमें इसमें आपका नेम रोल नंबर इनपुट करवा सकती हूँ, ऐसे प्रिंट करवा डॉट ऑपरेटर से। But if I'm playing with the concept of pointer variable, it is not a simple variable, it is a pointer variable, and उसकी मेमोरी मैंने बनाई है new struct student करके, new student करके I can create a structure. If I want to create a structure element through new pointer, I will have to take in C++ new struct student, new student कर दूं, मेरा पर्पस हो जाएगा new student। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मेरा पॉइंटर वेरिएबल से मैंने मेमोरी बनाई है एक वेरिएबल की, तो आई विल हैव टू यूज एन एरो ऑपरेटर, not a dot operator. This is just a recap of what you have done in C or C++. Arrow operator is used when on the left hand side that is not a single variable structure, that is a pointer variable, then arrow operator is being used. Same is the concept which we will be using here itself. इसमें हम क्या करेंगे, data next portion, data is integer variable. Next is also, it is a pointer variable which will store the address of somewhat same type of quarter or the house. इसका एड्रेस रखेगा, लेट दिस एड्रेस 3000, तो इसके नेक्स्ट पोर्शन में एक पॉइंटर होगा, इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल, इट इज अ सिंपल इंटीजर वेरिएबल डाटा पोर्शन। अगर आपको पता हो, इफ somebody can tell me the answer, what is the difference between these tidbit, ये आपने सी में पढ़े होंगे। इसका टिडबिट क्या होता है, पॉइंटर क्या है, पॉइंटर इज नथिंग बट एड्रेस। आई एम अज्यूमिंग द लेमन पॉइंटर इज अ say it is some integer value, say otherwise it is represented from hexadecimal form also। तो ये एक एड्रेस है, एड्रेसेस इन द मेमोरी आर ऑलवेज इंटीजर। से इंटीजर जैसे हम बोलते हैं लेमन एग्जांपल में, इफ आई से शॉपिंग मॉल, इफ आई एम सेइंग इन पटियाला सिटी और व्हाट्स वेयरएवर यू आर रिजाइडिंग, वहां पर सारे एड्रेसेस इंटीजर हैं, से 1 3 34 95 ऑल एड्रेसेस आर इंटीजर्स। शॉपिंग मॉल एड्रेस, होम एड्रेस, से कुछ और एग्जांपल लगाओ, से सम गार्डन एड्रेस, गार्डन एस्ट्रिक एड्रेस। तो विद इन द पॉइंटर वेरिएबल, जैसे पी पॉइंटर इज नॉट अ सिंपल वेरिएबल, इट इज स्पेशल वेरिएबल जिसमें सिर्फ एड्रेसेस जाएंगे, से 3495। this is not a single integer value, this is the address of shopping mall asterisk p, means p will be of such data type, it will be only storing the address of shopping mall। जहां पर जैसे ओमेक्स मॉल है, जो भी आपके मॉल्स हैं, सिर्फ उसका ही एड्रेस रखेगा, माना ये इंटीजर वैल्यू हुई है। इफ आई एम सेइंग होम एस्ट्रिक पी, तो होम एस्ट्रिक पी का मतलब इसमें जो भी एड्रेस होगा वो इंटीजर ही। लेट अस सपोज पी के अंदर एड्रेस है से 2195, तो इफ आई एम सेइंग होम एस्ट्रिक पी, ये हमेशा उस लोकेशन का एड्रेस रखेगा जिसके अंदर जो एक होम है, जहां पर एक घर है किसी का। इफ आई एम से गार्डन एस्ट्रिक पी, तो पी नो डाउट है वैल्यू पी की वही 3100, खुद इंटीजर ही है, एड्रेस किसका रखेगा, जहां पर वहां पर गार्डन है, उस गार्डन का एड्रेस रखेगा, स्टार्टिंग एड्रेस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर कैरेक्टरिस्टिक पी, पी खुद तो इंटीजर ही है कैरेक्टरिस्टिक पी में, बट p is storing the address of such location जहां पर करेक्टर रहता है 3149। integer asterisk p means p is again a pointer variable, but वहां पर जिसका एड्रेस रख रहा है वहां पर इंटीजर वैल्यू रहती है। float asterisk p means p is storing the integer address, पर वहां पर क्या रहता है, floating point वैल्यू रहती है। तो this depend tells you p itself is an integer pointer, but to whom it is pointing, जहां वहां पर क्या रहता है वो चीज ये रिफ्लेक्ट कर रही है, डाटा टाइप। इफ आई एम सेइंग दिस इज 3000, तो 3000 इज द एड्रेस ऑफ, वहां पर क्या है, एक हाउस है, एक पूरा एक घर है, इस घर का एड्रेस है। तो घर को क्या बोल रहे हैं, एक नोड। इट इज नथिंग बट, if I've given the name of this pointer as p, so I will say what is the data type of this, I can say it is node asterisk p। तो p खुद तो पॉइंटर वैल्यू है, 3000 पॉइंटर वैल्यू है, पर किसका एड्रेस रख रहे हैं, एक घर का, इस घर का नाम क्या है, नोड। तो इट इज नोड एस्ट्रिक p, और यहाँ पर मैंने सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के p की जगह मैंने वेरिएबल का नाम होती है नेक्स्ट, तो इट इज नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट मींस वो इस पूरे नोड का एड्रेस रख रहा है। नेक्स्ट इज अ पॉइंटर वेरिएबल, नेक्स्ट एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें उस घर का, नेक्स्ट घर का, दिस इज टर्म इज कॉल्ड सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर।
खुद को रेफर कर रहे हैं। सेल्फ रेफरेंशियल मतलब रेफरेंशियल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर? ऐसा स्ट्रक्चर, एक नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर का नाम ही मैंने नोड रख दिया, दिस इज नथिंग बट वन नोड। लाइक स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखते हैं, ये यूजर डिफाइंड नाम है, ये इसमें टेक्निकल नाम नहीं है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखा है, आप स्ट्रक्ट नोड लिख लो, नोड वन लिखो, दैट इज योर चॉइस। जनरली वी रिकमेंड टू यूज नोड बिकॉज नोड इज अ सिंगल टर्म यूज फॉर लिंक लिस्ट। नाम दे दिया मैंने नोड का। डाटा पोर्शन एंड नेक्स्ट पोर्शन, दो चंक है इसके अंदर। ये पॉइंटर है, सिंपल पॉइंटर वेरिएबल, जिसके अंदर कोई एड्रेस जाएगा, जिसमें इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू जाएगी। किस टाइप के घर को पॉइंट करके? सेम टाइप के, सेल्फ जैसे सेम टाइप के क्वार्टर का ही एड्रेस रखेगी, खुद भी एक क्वार्टर की तरह सेम टाइप के घर का। तभी किस टाइप के नोड का रखेगी? सेम टाइप ऑफ नोड का ही एड्रेस रखेगी। नेक्स्ट पॉइंटर, इट विल स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट। तभी इसको बोलते हैं खुद जैसे। इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो खुद को रेफर कर रहा है, खुद जैसे डाटा टाइप को रेफर कर रहा है। इफ आई वुड हैव रिटन इंटीजर डाटा देन आई वुड हैव रिटन कैरेक्टरिस्टिक p। इसका मतलब क्या है? आपका एक घर जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया, इसमें 30 रह रहा है और इसमें एक पॉइंटर है, जो पॉइंटर एक किसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जहां पर सिर्फ एक करेक्टर रह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक p। तो ये सेल्फ रेफरेंशियल नहीं है, खुद जैसे डाटा को पॉइंट नहीं कर रहा, ये सेल्फ रेफरेंशियल है, खुद जैसे घर का एड्रेस रखता है। ओके, so this is a tidbit how to you have to start with the address this node concept। तो आपको ये नोड बनानी पड़ेगी। in the case of C++ you can skip this keyword struct every time, so you will be just writing int data node asterisk next semicolon। this is a template to use how you will be creating a single home for your purpose। now coming to the next, अब एक लिंक लिस्ट कैसे बनाते हैं? pay attention here now। एक लिंक लिस्ट जैसे ऊपर एग्जांपल दे रखी है, आई वांट टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स 30, 85, 170, 60। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई अज्यूम दैट मेन के बाहर आपने ये बना दिया स्ट्रक्चर नोड। तो स्ट्रक्चर नोड आप, मैं हर बार मान के चल रही हूँ आप बना चुके हो। उसके बाद मैं मेन शुरू कर रही हूँ। आई विल नाउ ऑनवर्ड, आई विल नॉट बी राइटिंग स्ट्रक्चर एवरी टाइम, आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मेन ऑनवर्ड। ओके, लेट मी जस्ट राइट डाउन स्ट्रक्चर अगेन ताकि आपको ध्यान में रहे। So for a single node, this was a template, data portion, and there was node asterisk next. That one pointer was there, which is whose name we have given as next, semicolon. काम खत्म। अब आ रहा है मेन का कोड। तो मेन के कोड में रिमेंबर दिस थिंग, इस घर का जो आप इसको घर मान लो नोड को, इस घर के जो चेन का स्टार्टिंग एड्रेस एक स्पेशल पर्सन के पास है, जिसको स्पेशल पॉइंटर बोलते हैं। दैट स्पेशल पर्सन नेम इज स्टार्ट। ये एक अलग से नाम है स्टार्ट, इसके अंदर उसके चेन का स्टार्टिंग एड्रेस होगा, एक ह्यूमन बीइंग है से। तो हाउ टू स्टार्ट राइटिंग द कोड ऑफ दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी क्रिएटिंग द लिंक लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 60। पहले एक घर बनेगा, उसके बाद 170 ऐड होगा, उसके बाद 85 बिकॉज इट इज इजी वेरिएंट, उसके बाद 30 ऐड होगा। आई विल डूइंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो करना कैसे? सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है, चलो 5 नोड्स हैं, यू कैन डू द वे यू वांट। फॉर 4 नोड्स कैसे करना है? 4 एलिमेंट्स के लिए आई विल जस्ट राइटिंग सबसे पहले मैं लिंक लिस्ट बनाऊंगी एक नोड की। स्टार्ट पॉइंटर एक वेरिएबल लिया, स्टार्ट पॉइंटर नाम का एक वेरिएबल पॉइंटर है। ओके, आई नीड द नेम पॉइंटर। ये स्टार्ट पॉइंटर इट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक p, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंटर तो ये है नहीं, क्योंकि कैरेक्टर को तो पॉइंट नहीं कर रहा। किसको पॉइंट कर रहा है? एक घर को। घर का नाम क्या है? नोड। तो इसकी डाटा टाइप क्या होगी? नोड एस्ट्रिक p स्टार्ट। अभी चेन कुछ भी नहीं बनी, खाली है चेन, स्टिल द चेन इज एम्प्टी फर्स्ट टाइम के लिए। अगर चेन एम्प्टी है तो स्टार्ट कहता है मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने प्लॉट्स कोई लिए ही नहीं है, तो आई कांट हैव द, देयर इज नो हाउस, तो माई एंट्री विल बी नल। इनिशियली माई एंट्री इज नल। फर्स्ट टाइम स्टार्ट कहता है मेरी एंट्री है नल, पर्सन है, इसके दिमाग में नल है, इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल, स्टार्ट हैज गॉट नल इनिशियली। अब आपने लगाना है लूप। लूप में सपोज करो मुझे चलाने हैं 1 2 3 4 एलिमेंट्स, तो लेट अस सपोज, आपको बताने के लिए कर रही हूँ सिंपल, अदरवाइज लूप की जरूरत नहीं है। i less than equal to 4, you can declare the remaining variables। I'm just giving you the brief overview how to get it done। तो फर्स्ट नोड आप बना रहे हो, से आई एम क्रिएटिंग दिस नोड फर्स्ट टाइम, 60 वाली लास्ट नोड से शुरू कर रही हूँ मैं। पहला घर बनाया है और उसके नेक्स्ट मुझे नल डालना है, ऑब्वियसली इसमें 5063 जो भी होगा।
तो आई क्रिएटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले घर खरीदूंगी मैं, तो घर खरीदने के लिए एक मैंने घर खरीदा जिसमें भी गार्बेज वैल्यू है। जैसे आप नया घर खरीदते हो तो उसमें आप सामान पहले नहीं रख लेते, तो दैट इज अ गार्बेज घर, उसमें कुछ वैल्यू डाली नहीं हमने। हाउ टू allocate this memory from the RAM, how to get the memory 5063 from the RAM, उसके लिए आप बनाओगे एक टेम्परेरी एक पर्सन और ले लिया, लेट अस सपोज द नेम ऑफ द पर्सन इज टेम्प, एक टेम्परेरी पॉइंटर और ले लिया, उसका नाम है टेम्प। आई टुक वन मोर पॉइंटर कॉमा स्टार टेम्प, ऐसे ही डिक्लेयर कर दिया एक। तो वो टेम्परेरी पर्सन क्या कर रहा है, टेम्प इज इक्वल टू, ये बंदा अपना नया घर जमीन खरीदेगा, हाउ टू गेट इट डन, न्यू node. I am talking about the syntax of C++, new node. What it will do, it will create a new node, like it will allocate the memory for a new house. उस घर का जो भी एड्रेस होगा वो रिटर्न कर देगा ये वैल्यू, बोलेगा 5063, और ये 5063 किस में कॉपी हो रहा है, टेम्प पॉइंटर वेरिएबल में। तो ओके, टेम्प विल से नाउ आई गॉट द एड्रेस ऑफ द न्यू लोकेशन विच यू परचेज्ड। तो टेम्प पर्सन के पास इस घर का स्टार्टिंग एड्रेस कॉपी हो गया फॉर सम आई वैल्यू। आफ्टर दिस, अब इस आई के अंदर मुझे 60 डालना है, तो आई कैन डायरेक्टली राइट टेम्प। अब इसका ये पोर्शन, दो घर है इधर के, एक से किचन है दैट इज डाटा पोर्शन, एक बेडरूम है दैट इज द नेक्स्ट पोर्शन से, टू पोर्शंस आर देयर। हाउ टू असेस 5063 का डाटा पोर्शन में मुझे डालना है वैल्यू 60, और 5063 के क्योंकि एक ही घर है, नेक्स्ट पोर्शन में पॉइंटर अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, तो हमें वो लॉजिकली लिखते हैं नल, ये अलाउड है सिंटेक्स, नल मींस नॉट पॉइंटिंग टू एनीथिंग, जेन्युइन टर्म। अब इसमें डालोगे कैसे, ये एड्रेस किसके पास है, टेम्प के पास है, तो टेम्प इज नथिंग बट 5063, तो यू कैन राइट हियर टेम्प एरो डाटा इज इक्वल टू 60, ये तो आप डमी निकाल सकते हो। टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू नल is the first temp. This is the code to create any node, new node, and put the value inside that node. अब यहाँ पर 60 डाला, नेक्स्ट टाइम 170 होगा, फिर 85 होगा। इसको जनरलाइज करने का तरीका क्या है, बट आई कैन डू, आई कैन डायरेक्टली से सी इन इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, सी इन टेम्प डाटा। अगर स्कैन एफ करवाना है आप स्कैन एफ करवा लो, अगर आप सी की बात कर रहे हो तो आई कैन डायरेक्टली राइट इन द फॉर्म ऑफ सी लैंग्वेज, आई विल से स्कैन एफ, कीबोर्ड से इनपुट करवा दो %d %, temp arrow data, that is your choice the way you want to do। तो इसको आप स्कैन एफ भी करवा सकते हो, सीन भी करवा सकते हो। तो मैंने सीन करवाया, सपोज 60 करवा लिया, इस चंक में आपका 60 चला गया, इसके नेक्स्ट में चला गया नल। टेम्प के पास का एड्रेस है, एक्चुअल जो पर्सन है मेन ऑनर होना चाहिए स्टार्ट, टेम्प तो टेम्परेरी लिया है, बंदे ने खरीदा था। टेम्प कहता है ओके, अब दोनों बैठे चाय पी रहे हैं, कहता है स्टार्ट कहता है मुझे एड्रेस का जो चेन बनाई है, कहता है ओके आई विल टेल यू द एड्रेस ऑफ दैट, हाउ टू कॉपी दिस एड्रेस। तो वो बोलेगा लिंक लिस्ट का मुझे बता, तूने घर का एड्रेस क्या रखा है, कहते मेरे एड्रेस है 5063, हाउ टू कॉपी, तो यू विल से स्टार्ट इज इक्वल टू टेम्प, स्टार्ट में ही वो टेम्परेरी वैल्यू को कॉपी हो जाएगी, तो स्टार्ट के पास भी अब क्या आ जाएगा 5063, गॉट इट। तो अब स्टार्ट के पास भी 5063 आ गया, स्टार्ट इज आल्सो अ पर्सन विच विल हैव नाउ 5063 इन हैंड, तो इसके पास भी 5063 पास में आ गया। फिर गया आई ऊपर, लूप चला, आई हो गया अब 2, आई जब 2 हुआ इंक्रीमेंट करने के बाद, अब एक नई नोड बनेगी, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, व्हाट इट विल डू, न्यू नोड हमेशा नई नोड बनाती है, ध्यान में रखना फंक्शन, इट क्रिएट्स द न्यू हाउस। तो आपने नया हाउस खरीदा, नया हाउस क्या है, लेट द न्यू हाउस इज, अब नेक्स्ट टाइम न्यू हाउस क्या है आपका, दैट इज से 170 वाला हमने घर खरीदा, बिकॉज एट दिस मोमेंट स्टार्ट वाज आल्सो पॉइंटिंग टू दिस, टेम्प वाज आल्सो पॉइंटिंग टू दिस। टेम्प जब आई आपका 2 हुआ, फिर से एक नई नोड बनी, न्यू नोड क्रिएटेड इज 17, ये घर 1024, इसके आगे बनेगा ये घर, एक घर खरीदा गया जिसका एड्रेस है 1024। अब टेम्प वेरिएबल के अंदर ऐसा डीलर है, हर सिर्फ एक एड्रेस रखता है, टेम्प कहता है नाउ आई विल रिमूव द फर्स्ट एड्रेस, ओवरराइट हो गया, वैल्यू यहाँ आ जाएगा 1024 टेम्प के पास। स्टार्ट अभी भी पुराने को पॉइंट कर रहा है, तो अब टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प इज नाउ पॉइंटिंग टू द न्यू हाउस, नॉट दिस वन, टेम्प इज पॉइंटिंग टू द दिस हाउस ओनली, स्टार्ट पिछले वाले को पॉइंट कर रहा है। अब आपको बनानी है चेन यहाँ पर, हाउ यू विल बी क्रिएटिंग चेन इन दिस केस, जो नया घर बना है उसमें आप डाटा पोर्शन डालो,
data portion you wanted to enter was 170. तो see in temp data, तो 1024 एरो अब जाएगा 1024 एरो डाटा। तो यहाँ पर जो भी आपने 170 या 70 की वैल्यू डालनी वो डालो। टेम्प के नेक्स्ट में 1024 में अभी के नल डाल दो, तो ये चलेगा नल और डाटा पोर्शन चलेगा आपका 170 से। ये डल गया। अब ध्यान से देखो, अब आपको बनानी है चेन। देयर आर टू पर्सन्स, देयर आर टू हाउसेस। एक घर ये है I2 तक के लिए, एक घर ये है, इस घर का एड्रेस है स्टार्ट वेरिएबल के पास, इस घर का एड्रेस है टेम्प वेरिएबल के पास। हाउ टू मेक दिस चेन? ये चेन कैसे बनेगी? अगर 1 to 4 के नेक्स्ट पोर्शन में आपने 5063 डाल दिया तो ये चेन बन जाएगी एक तरह की। नाउ व्हाट which thing stores 1024? that is temp। टेम्प के नेक्स्ट में आप क्या डाल दोगे? 5063। 5036 किस पर्सन के पास है एड्रेस? स्टार्ट के पास। इफ यू आर यूजिंग दिस लाइन ऑफ कोड, दिस विल गिव यू, इफ आई एम सेइंग टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट, दिस विल गिव मी चेन। ये I1 के लिए लिखा किया था मैंने, सिर्फ दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट को अपडेट किया था। ये एल्स केस में है। एल्स केस में क्या है? टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट। अब ये बन गई आपकी चेन, ये चेन बन गई। अब इस चेन का जो घर के दो चेन का स्टार्टिंग एड्रेस किसके पास होना चाहिए? स्टार्ट के पास। टेम्प तो टेम्परेरी पर्सन है, स्टार्ट शुड हैव 1024। तो 1024 किसके पास है? टेम्प के पास। तो स्टार्ट बोलेगा आई विल टेक द वैल्यू फ्रॉम टेम्प, तो स्टार्ट विल बिकम इक्वल टू टेम्प। So you are just playing with these tidbits to get your work done. So I will now generalize this for the third case to make it clear, more clear. थर्ड लिंक लिस्ट में एलिमेंट कैसे डलेगा? से यहाँ तक आपका डल चुका है, तो थर्ड के केस में कैसे डलेगा? So till this, while till I is equal to 2, till that the values are, start is pointing to the 170th element. इस एग्जांपल में अब थर्ड I3 की बात कर रही हूँ। टेम्प was also pointing to 1024 and start was also pointing to 1024 till this, till I is equal to 2. So both were pointing to 1024. Now I want to add the third node, this node. Now how to add the third node? Create a new node. Say I created a new node. I will just rub it from here to make it more spacious. So this starting address and temp address both are pointing to the same node. Start was also pointing to 1024. Temp was also earlier pointing to 1024. Both were these pointers. Now I want to add, for I is equal to 3, I want to add the third node. Now how to add the third node? Again, give for temp is equal to new node. What it will do? It will create a new house whose starting address is say 8521. So what you will do in this case? Temp is equal to new node. Temp के अंदर उसका address चला जाएगा. Now temp will now have 8521 here as address. See in temp data, say I entered the value 85 here from the keyboard. Temp का next is equal to null. 8521 का next portion है, उसमें डाल दो null. Done. यहाँ पर आपका 5063 आ चुका है। Now what is the third thing? If I is equal to 1, first time I तो आपका 3 चल रहा है, 3 के केस में, तो it will go to the else loop. Temp का next is equal to start. What is temp का next is equal to start means? तो temp variable है, इसके इस portion में अगर मैं 1024 डाल दूं, this will give me a chain. If I say 8521 का next portion, if I say it as 1024, this will give me a chain of the linked list. Done. How to get it done? Where is 8524? That is temp. Temp का next is equal to start. So next time ये आपकी linked list ये बन गई. And what is about start? Start should now should be equal to 8521. That means should be equal to 10. This is the logic of insertion of a new node at the beginning of the given link.